Hello everyone, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to start the new chapter from your subject pharmaceutical engineering. Okay, so the name of today's chapter is flow of fluids, and this is the very first chapter from your syllabus, but we are going to study it today. Okay, so flow of fluids, first of all, what is the meaning of fluid? So fluid is the material that continuously deforms under a constant load. Okay, fluid एक ऐसा material होता है which will continuously deforms means it will undergo the change in its shape when or under certain constant load. The constant load can be the shear stress or any external force. Okay, मतलब fluid का मतलब क्या होता है कि जब फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंटिन्यूअसली अंडर डिफॉर्मेशन जा सकता है जब वो कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट लोड के अंडर हो। तो वो कांस्टेंट लोड या तो शियर स्ट्रेस होता है या तो एक्सटर्नल फोर्स होता है। ओके, से फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड gases. Okay, so among the solid, liquid and gaseous, the liquid and gaseous can be termed as fluid. Why? अगर सपोज आप एग्जांपल लो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, और उसमें से आप पर्टिकुलर एक कांस्टेंट लोड अप्लाई करो ये तीनों चीजों पे, सॉलिड पे भी, लिक्विड पे भी और गैस पे भी। ठीक है, सो सॉलिड पे अगर आपने एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो क्या होगा, सॉलिड क्या, सपोज आपने एक ब्रिक लिया, ठीक है, एक ईट ली और उस पे आपने उसको आपने पर्टिकुलर एक shear stress अप्लाई किया तो वो क्या होगा कि थोड़ा पोजीशन उसका चेंज करेगा, बट इट विल नॉट अंडरगो द डिफॉर्मेशन। वो खुद का शेप चेंज करेगा क्या? नहीं। ठीक है, मतलब सॉलिड इज नॉट, और सॉलिड कैन नॉट बी टर्म्ड एज द फ्लूइड, बट अपोजिट टू द सॉलिड द लिक्विड एंड गैसेस, उस पे क्या होगा कि सेम जो हमने सॉलिड पे शेयर स्ट्रेस या तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वही सेम शेयर स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने लिक्विड और गैसेस पे अगर हमने अप्लाई किया तो क्या होगा कि वो उनका पोजीशन तो चेंज करेंगे ही करेंगे, बट इट विल, और द लिक्विड एंड गैसेस विल गो डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस कैन बी टर्म्ड एज द फ्लूइड। ओके, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में आपको ये समझ में आ गया कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड इज अ मटेरियल that continuously deforms under a constant load. That constant load can be the shear stress or the external force. Okay, so in this chapter you are going to study about the flow of fluid, means how this fluid will flow and what are the principles related to it. Okay, now next is the fluid flow. So a fluid is a substance that continuously deforms or flows under an applied shear stress. Okay, the fluid flow may be defined as the flow of substances that do not permanently resist the distortion, जो कि permanently distortion को resist नहीं करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे सब्सटेंसेस के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्लो। ठीक है, फ्लूइड क्या है आपको समझ में आ गया कि द सब्सटेंस विच विल कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर applied constant load. Okay, under certain constant load that may be shear stress or external force. Okay, now what is the fluid flow? Fluid flow is the flow of substances that do not permanently resist the distortion, जो कि permanently distortion को resist नहीं करते हैं। Okay, the subject of fluid flow can be divided into the two factors, two parameters, that is the fluid statistics and fluid dynamics. Okay, so before starting this fluid flow, the flow of fluid comes under the प्रिंसिपल और कम्स अंडर द साइंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, कि ये जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जनरली फॉर योर बेसिक नॉलेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द basics about this fluid flow. Okay, so this flow of fluid comes under the topic or comes under the main
subject, that is the fluid mechanics. Okay, now what is fluid mechanics then? Fluid mechanics is the study of forces and flow within the fluids. fluid mechanics के अंदर हम flow of fluid को पढ़ेंगे. fluid mechanics क्या है? It is the study of forces and study of flow within the fluid. ठीक है, मतलब fluid के अंदर जो भी forces और जो भी flow होता है उसका study is nothing but the fluid mechanics. Okay, so definition wise it is the branch of physics that deals with the mechanics of fluid, that is liquid and gases. को किसको हम fluid बोल सकते हैं? solid को तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिफॉर्म नहीं होता है. मतलब कौन बचा हमारा? liquid और gases. Okay, so fluid mechanics is the branch of physics that deals with the mechanics of fluid and forces on them. Okay, जो भी उस पे forces apply होता है जिसके वजह से वो under deformation जाते हैं, that study is nothing but your fluid mechanics. Okay, so इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड मोशन. जो भी हमने यहाँ पे देखा है ना, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड की स्टडी है, बट वो फ्लूइड की स्टडी कब है? जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है या तो फिर मोशन में होता है. जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है इट इज रेफर्ड एज द स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, कि जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होता है, उसमें कोई भी मोशन कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वो शांत चुपचाप से होता है, तो उस स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स और द स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, उसके अपोजिट जब कोई भी फ्लूइड एट मोशन होता है, मोशन में होता है, तो उसका मोशन में होते हुए अगर उसकी स्टडी हम करेंगे, दैट इज रेफर्ड एज द फ्लूइड dynamic fluid mechanics or fluid dynamics. Okay, so this flow of fluid can be divided into the two categories. First one is the fluid statistics, where the liquid or the fluid is at a rest position, and next is the fluid dynamics, where the liquid is at the movement or at motion. Okay, so we will study it one by one. Now fluid statistics. Okay, so this fluid statistics is the study of fluids at rest in equilibrium position. Okay, so this fluid statistics is also known as hydrostatistics. आपके MCQ के लिए आपको काम में आएगा कि क्या fluid statistics is also known as the hydrostatistics. Okay, so here in this fluid statistics there is no shear stress is applied. Okay, and that's why this is the study of the fluid which is present at the rest position. यहाँ पे कोई भी shear stress, there is no shear stress when the fluid is at rest position. Okay, so this any force developed will be only due to its pressure and pressure variation, or is simply due to the weight of the liquid. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? फ्लूइड स्टैटिस्टिक में हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल आपने यहाँ पे shear stress अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चेंजेस होगा, कुछ होगा, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे होगा? बिकॉज द फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन देम. ओके, और ड्यू टू द प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर डिफरेंसेस के वजह से. वो भी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड के वजह से. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. क्या है फ्लूइड स्टैटिस्टिक? कि लिक्विड जब रेस्ट पोजीशन पे होता है उसका स्टडी हम करेंगे. इट इज रेफर्ड एज द फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. ओके, means simply behavior of the liquid at rest position. Okay, so this fluid statistics is useful for the calculation of pressure differences. Pressure differences can be calculated by using the different types of manometers जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे. ओके, सो यहाँ पे कंसिडर अ कॉलम, ये सिंपल कॉलम है. ओके, कि where the two openings are given at, this is the first opening that is point 1 and this is the second opening point 2. ओके, दो डिफरेंट हाइट पे आपका क्या क्या बताया है उन्होंने कि दो डिफरेंट हाइट पे आपको ओपनिंग दी है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट P1. ओके, वेयर द हाइट इज H1. सेकेंड इज द पॉइंट 2 दैट इज वेयर द हाइट इज H2. ओके, now we are moving towards the calculation parts or principle of this fluid statistic. Okay, so consider a column of liquid with two openings which are provided at the wall of the vessel at different height. दो opening कौन सी है? point 1 point 2. दो opening में different height का difference है. जो point 1 की opening है उसके लिए height क्या है? H1. जो point 2 की opening है the height is H2. Okay, the rate of flow through these openings
are different due to the pressure exerted at different height. ओके ये तो समझ में आ सकता है आपको कि क्या कि फ्लो का रेट, फ्लो की स्पीड, फ्लो की वेलोसिटी इज डिफरेंट एट बोथ द ओपनिंग्स बिकॉज द फ्लूइड इज फ्लोइंग एट डिफरेंट हाइट. ठीक है, तो डिफरेंट हाइट है मतलब क्या, देयर इज प्रेशर difference ultimately. Okay, so consider a stationary column kyunki we are studying the few statistics, so the fluid must be at a rest position. That's why the stationary column with the pressure ps is acting on the surface of the fluid. Okay, that's why p stands for pressure and s is the surface on which the pressure is acting on the fluid. Okay, column is maintained at constant pressure by applying the pressure. यहाँ पे क्या हो रहा है कि the constant pressure is maintained. Okay, so the force acting below and above point 1 can be evaluated as follows. Okay, अब क्या करेंगे हम कि point 1 के below and above जो force act होगा उसको हम calculate करेंगे. Okay, so force acting on the liquid at point 1 equals to force on the surface प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव पॉइंट 1. ठीक है, जो कि सरफेस पे फोर्स है उसको ऐड करेंगे हम फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव पॉइंट 1. ओके, सो substituting the force with pressure into area of cross section in the above equation because pressure equals to force upon area. So that's why here हम क्या करेंगे कि फोर्स को हम सब्सटीट्यूट करेंगे प्रेशर इनटू एरिया बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो उसको अपोजिट साइड में भेज रहे हैं हम तो क्या होगा वो डिवाइडेशन में था तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा प्रेशर के कौन एरिया. ओके, सो द प्रेशर एट पॉइंट 1, अब हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट 1 का इनटू एरिया बिकॉज वी आर सब्सटीट्यूटिंग फोर्स. यहाँ पे क्या है सिर्फ फोर्स है पॉइंट 1 का, तो फोर्स को सब्सटीट्यूट कैसे कर रहे हैं हम प्रेशर इनटू एरिया. दैट्स व्हाई वी आर सब्सटीट्यूटिंग द फोर्स इनटू प्रेशर इनटू एरिया. ओके, सॉरी, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या था फोर्स, तो फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया प्लस क्या है यहाँ पे फोर्स एक्टेड बाय द लिक्विड एट पॉइंट 1. ये क्या है वेट ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, ये समझ में आ गया आपके. ओके, नेक्स्ट, सो दैट्स व्हाई P1S मीन्स क्या कि पॉइंट 1 का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम. ठीक है, तो पॉइंट 1 पे क्या है इक्वल्स टू द P2S जो कि प्रेशर क्या है सेकेंड पॉइंट पे. ओके, प्लस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो दैट वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड बाय द हाइट इनटू एरिया. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कैसे लिख सकते हैं हम P1S इक्वल्स टू P2S प्लस H1 इज द हाइट एट पॉइंट 1. Okay, S is nothing but the area, rho is nothing but the density and G is nothing but the gravity. Okay, so this is the P1. Okay, as the surface area is same, that's why P1 equals to PS plus H1 rho G. surface area क्या है सेम है तो surface area की कोई जरूरत नहीं. Okay, so that's why the pressure at point 1 is P1 equals to PS plus H1 rho G. Okay, so pressure acting on point 2 may be written as क्या होगा आप P2 equals to PS plus H2 rho G. ठीक है, सिर्फ क्या होगा अब सेकेंड पॉइंट पे है तो H2 आ जाएगा. ओके, बाकी क्या होगा कि डेंसिटी and acceleration due to gravity. Okay, so difference in the pressure is obtained by. अब प्रेशर डिफरेंस हमको, हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है जिसके वजह से आपका फ्लूइड का रेट डिफरेंट आ रहा है ना. ओके, सो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू, अब क्या करना है सब सिंपल, आपको ये इक्वेशंस को साथ में लाना है. P2 का पहला लिख लो आप ये इक्वेशन यहाँ पे. ओके, माइनस P1 का ये उठा के यहाँ पे लाओ. ठीक है, अब जो भी कॉमन है उनको आपको एडजस्ट करना है. ओके, सो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल्टा P दैट इज नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंसेस. ओके, सो हियर H2 रो G माइनस H1 रो G. ओके, सो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. अब क्या बचा H2 रो G minus H1 rho G means here the pressure difference equal to delta H rho G means P equals to H rho G. Therefore pressure difference equal to the height difference. जितना भी height difference रहेगा उसके equilibrium में क्या रहेगा आपका pressure difference. Okay, so this is it about the fluid statistics. Then मैनोमीटर, जो भी हमने अभी बेसिक इक्वेशन पढ़ा वो आपको एग्जाम के लिए
करना है उसको, पढ़ना है उसको, ठीक है. सो दैट प्रेशर डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय these manometers. Okay, so the manometers are nothing but the devices which are used for measuring the pressure differences. Okay, कि pressure difference को measure करने के लिए these manometers are used. Okay, so the different types of manometers are simple manometer, differential manometer and inclined manometer. ठीक है, among these the simple manometer is widely used for the measuring the pressure differences. Okay, now simple manometer, this manometer is most commonly used. Okay, it consists of a glass U-shaped tube filled with the liquid A of density rho A kg per meter cube, and above A the arms are filled with the liquid B of density rho B. ठीक है, इसको आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका U शेप का ट्यूब विच इज रेफर्ड एज द सिंपल मैनोमीटर. ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, अगेन प्रेशर डिफरेंस है, मतलब क्या, दो तरीके के लिक्विड हो गए ना. सो द टू लिक्विड्स आर फिल्ड. यहाँ पे क्या है, ये रेड में है वो, दैट इज नथिंग बट द लिक्विड ए एंड दिस इज द लिक्विड बी. अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये अलग अलग हाइट पे जा रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस. ठीक है, तो जो 1 नंबर के पॉइंट पे आपका प्रेशर आ रहा है उसको आप बोलोगे प्रेशर 1 P1. ओके, जो 5 नंबर केस पे आ रहा है वो हो गया आपका प्रेशर 2. ओके, एंड इट विल डिपेंड ऑन द क्या, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड अगेन द ग्रेविटी. ओके, एंड हाइट. अब हाइट क्या है, चलो 5 से लेकर 4 तक दैट इज m, और 4 से लेकर 3 तक दैट इज r. ओके, अब 0.5 से 0.3 तक अगर आपको कैलकुलेट करना है हाइट, दैट इज नथिंग बट द m plus r. ओके, then the liquid A and B are immiscible and the interference can be clearly seen. Okay, कि lower meniscus आ जाएगा जब आप उसको pressure apply करोगे. The two different pressures are applied on the two arms. The meniscus of one liquid will be higher than the other due to the pressure differences जो कि हमको ultimately calculate करना है. Okay, so the leg pressure at point 1 will be P1 pascals and pressure at 0.5 will be P2 pascals, जो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम में बताया है. ओके, कि 2 पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई हुए हैं, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ उसको इट इज रेफर्ड बाय P1 pascal and 0.5 पे जो हुआ है इट इज टर्म्ड बाय डिनोटेड बाय द P2 pascal. ओके, सो द प्रेशर एट पॉइंट 2, अब हम एक एक पॉइंट से प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो द प्रेशर एट पॉइंट 2 कैन बी रिटन एज 0.2 इक्वल्स टू P1 प्लस m प्लस r रो बी जी. हाउ, ठीक है, अभी पॉइंट 2 पे लिक्विड B है इसलिए उसका डेंसिटी रहेगा रो बी. ठीक है, अब पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रेशर हम कंसिडर करेंगे, ये तो नहीं कर सकते. पॉइंट 2 पे कौन सा प्रेशर आएगा, ये, सो इक्वल्स टू P1. ठीक है, अब इसकी हाइट क्या कर रहेगी, m प्लस r आ गया. ठीक है, उसके बाद रो बी जी जो कि डेंसिटी थी दैट इज रो बी क्यों किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड B है. ठीक है, और G इज नथिंग बट द ग्रेविटी. समझ में आया आपको, जो हमने यहाँ पे लिया था दैट इज हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, सेम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइट क्या है, प्रेशर तो P1 है, प्लस हाइट क्या है हमारा m प्लस r, डेंसिटी क्या है रो बी, और ये है ग्रेविटी. ओके, सो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट 2 वेयर m प्लस r इज द डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 5. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 5 दैट इज m प्लस r. ओके, ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन, फर्स्ट हो गया हमारा, और प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट 2. अब नेक्स्ट, since the point 2 and 3 are at the same height, the pressure at 3 can be written as. अब जो प्रेशर पॉइंट 2 पे बनता है वही प्रेशर, सेम प्रेशर, क्योंकि वो दोनों सेम डिस्टेंस पे खड़े हैं, सेम हाइट पे खड़े हैं, इसलिए जो प्रेशर हमारा पॉइंट 2 पे बनता था सेम वही प्रेशर हमारा क्या रहेगा, 3 पे रहेगा. ओके, सो द प्रेशर एट पॉइंट 3 equals to P1 m plus r rho b g, exactly same as point 2 because they both are standing at a equal height. Okay, so now the pressure at point 4 can be written as. अब देखो इसको दो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो आप, कि 4 का अबव प्रेशर मेजर करके कर सकते हो, या तो जो आप 4 के नीचे 3 प्रेजेंट है उसका और ये 4 में का जो डिफरेंस निकाल के वो कर सकते हो. मतलब विथ रेफरेंस टू 0.3 हम 4 का प्रेशर कर सकते हैं, या तो अबव 4 पे जो है वो कर सकते हैं. ओके, सो हियर
the pressure at point 4 can be written as P2 plus GM rho B. That is क्या है यहाँ पे P2, ठीक है, रो क्या रहेगा डेंसिटी जो कि यहाँ पे बनती है, और सिर्फ m क्यों आया बिकॉज इतना ही हाइट आ रहा है अगर हम अबव वाला देखें तो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन एट point 4, P2 plus GM, M is nothing but the mass, okay, mass, weight of the liquid, okay, and rho B. और second equation क्या हो सकता है, this second equation is with reference to this point 3. अब point 3 का सीधा सीधा इक्वेशन उठा के यहाँ पे रख दिया है उन्होंने, but the only difference is this minus rho a r g, minus rho a r g क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या आएगा, रो ए क्यू, क्योंकि लिक्विड ए है यहाँ पे, तो डेंसिटी भी आपको ए का कंसिडर करना पड़ेगा, मींस माइनस रो ए, आर क्या है आपका इतना ही हाइट आ रहा है मतलब सिर्फ आर, और जी इज नथिंग बट द ग्रेविटी, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको 4 पे दो तरीके के प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो 0.4 के अबव वाला जो कि P2 G M और रो भी रहेगा, P2 क्या है सेकेंड प्रेशर जो कि 0.5 पे हो रहा है, G इज द ग्रेविटी, M इज द वेट ऑफ द लिक्विड, एंड रो भी क्या है बिकॉज डेंसिटी लिक्विड भी है वहां पे इसलिए उसका डेंसिटी। और अगर आपको 3 के रेफरेंस में 4 का प्रेशर निकालना है तो आपको 3 और 4 के बीच में का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक तो P1 का प्रेशर जो कि यहाँ से एक वाले पॉइंट से आ रहा है, देन रो भी क्या है बिकॉज आपका लिक्विड बी प्रेजेंट है इसलिए उसका डेंसिटी लो, एम प्लस आर क्या है उसका हाइट है 3 पॉइंट का, और जी क्या है ग्रेविटी। ये पूरा इक्वेशन यहाँ तक के हो गया आपका 3 वाला, ठीक है। माइनस रो ए आर जी क्या है, माइनस रो ए आर जी आपका 3 और 4 में का डिफरेंस है, रो ए मतलब लिक्विड ए प्रेजेंट है इसलिए उसका डेंसिटी लिया, उसकी हाइट सिर्फ आर है इसलिए आर लिया, और ग्रेविटी, ओके। बट here ये both the equations should be equal, that's why you have to write this on this side, और ये इक्वेशन उठा लिया ये साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके। अब इसको इक्वल करते हुए दैट इज एडजस्ट करते हुए और सॉल्व अच्छे से करते हुए क्या है, P1 अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, सो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू GM रो B माइनस PB M प्लस RG, और यहाँ पे क्या होगा, अब आपने चेंज किया है तो सब साइंस आपकी चेंज हो जाएगी, प्लस रो ए आर जी, ओके। सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जी एम रो बी माइनस, अब आपको कॉमन जो है उसको मल्टीप्लाई करके आपका ये इक्वेशन बनता है, तो अल्टीमेटली जो प्लस माइनस है उसको कैंसल, ये जी एम प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब जो कॉमन फैक्टर उसको बाहर निकालो, कौन कॉमन है यहाँ पे, आर रो ए माइनस रो बी इंटू जी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, or this is the final pressure difference which can be calculated by the simple manometer, okay. Now next is the differential manometer. So these manometers are used for the measurement of small pressure differences. सिंपल मैनोमीटर ही वाइडली यूज होता है, वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर क्या है कि स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ओके। सो इट इज आल्सो नोन एज द टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर, वो यू ट्यूब मैनोमीटर था कौन सा, सिंपल मैनोमीटर, एंड दिस इज द टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर, ओके। It consists of two immiscible liquid A and B having nearly same densities, okay. The U-tube contains enlarged chambers on both the limbs, ठीक है, these have the enlarged chamber unlike the simple manometer, okay. Using the principle of simple manometer, the pressure differences can be written as delta P equals to P1 minus P2, and it is calculated by the equation that is R रो सी माइनस रो ए इंटू जी, ठीक है। सेम लाइक द सिंपल मैनोमीटर, वही इक्वेशन है वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यही सिर्फ एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशियल एंड सिंपल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस and simple manometer is used for calculating the major pressure differences, okay. Next is the inclined tube manometer. So the name itself indicates that it is inclined, somewhat inclined position में रहता है, okay. So inclined manometer is a manometer which measured the minute pressure difference between the two point, okay. So it is the modification of differential manometer
एंड दिस टाइप इंक्रीजेस द प्रेशर एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, जो भी लैक्यूनस आपके, जो भी ड्रॉबैक्स आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के थे उसको थोड़े से मॉडिफाई करके, उसको ओवरकम करके इंक्लाइन मैनोमीटर को बनाया है। सो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द minute pressure differences. Okay, so this is how it looks. So it is in the inclined position. Okay, now next is the fluid dynamics. फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स पढ़ा है और उसको कैसे प्रेशर डिफरेंस उसका कैलकुलेट करेंगे ये भी पढ़ा। वो था फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में, जो कि व्हेन इट इज दिस, इट डील्स विद द calculation of pressure differences but the when the liquid or the fluid is at rest position. ठीक है, तो ये उसका opposite. So fluid dynamics deals with the study of fluids but that fluid should be in motion. जब fluid आपका motion में होता है, at that time this fluid dynamics is used. Okay, so the fluid dynamics is useful for the liquid gels and ointments which will change their flow behavior when exposed to the different stress conditions. जब वो मोशन में आते हैं, जब वो स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, तब उनका बिहेवियर चेंज होता है. सो एट दैट टाइम दिस फ्लूइड डायनेमिक्स इज important. Okay, now next is the types of flow. Okay, so there are basically two types of flow. First one is the laminar flow and second is the turbulent flow. Okay, now what is laminar flow? Okay, laminar flow मतलब सीधा सीधा straight in one line. ठीक है, रैंडम मोशन में ना चलते हुए सीधा सीधा फ्लो करते हुए, अपने काम से काम रखते हुए, ओवरलैप, ठीक है, एक दूसरे के इसमें ना घुसते हुए. ठीक है, सो लैमिनार फ्लो इज वन in which the fluid particles move in layers or laminar in a line with one layer sliding with other. Okay, so this is nothing but the laminar flow. So there is no exchange of fluid particles from one layer to other. This is very important. Discipline में एक line में चढ़ते हुए, that flow is nothing but the laminar flow. So opposite to the laminar flow, there is a turbulent flow. कि turbulent flow में क्या होता है अब कि here when there is a motion, when there is a speed, ठीक है, जब वेलोसिटी बढ़ता है तो आपका फ्लो रेट बढ़ता है फ्लूइड का. ठीक है, एट दैट टाइम फ्लूइड क्या करते हैं, रैंडम मोशन में फ्लो होते हैं. सो रैंडम मोशन में फ्लो होते टाइम पे देयर आर फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ ईडीज, वेव्स, वोर्टाइसेस. सो दैट इज नथिंग बट द टर्बुलेंट फ्लो. कि जब वो चुपचाप से शांति से एक लाइन में लैमिनार मोशन में ना चलते हुए रैंडमली चलते हैं due to the high velocity, so that time that flow is termed as the turbulent flow. Okay, so when the velocity of water is increased, fluid particles move in random manner instead of a straight path. ठीक है, लैमिनार में वो क्या कर रहे थे, एक चुपचाप से स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे थे, बट अनलाइक दैट in the turbulent flow they will not follow the straight path, rather they will undergo the randomness. Okay, so this type of flow is called as a turbulent flow. In turbulent flow the vortices, eddies and waves make the flow unpredictable. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी vortices, eddies, waves फॉर्म होता है वो पर्टिकुलरली फ्लूइड के फ्लो को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं. मतलब को उनको एक तो वो स्ट्रेट पाथ में फॉलो नहीं होते हैं और कौन से भी एंगल से, कौन से भी डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं. दैट्स व्हाई this formation of waves, eddies will make that particular flow of fluid unpredictable. Okay, the velocity at which the fluid changes from laminar flow to turbulent flow, that velocity is referred as the critical velocity. MCQ के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें शांति से चलने वाला, डिसिप्लिन में चलने वाले फ्लूइड को आप रैंडम मोशन में भगा दोगे या तो वो स्ट्रेट पाथ बाद में फॉलो नहीं करेगा. मतलब क्या हो रहा, the flow of fluid changing itself from the laminar flow suddenly to the turbulent flow, so that velocity is referred as the critical velocity. ठीक है, अब वो laminar से turbulent में जाएगा, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप है क्या, नहीं. who is responsible, velocity is responsible. So that velocity at which the fluid changes its direction from laminar towards the turbulent, that particular velocity is termed as the critical velocity. Okay, so this is the diagrammatic representation of your types of flow. ये कि क्या है, चुपचाप से एक पाथ स्लाइड एक दूसरे पे ना चढ़ते हुए चुपचाप से एक पाथ में जा रहा है,
सो दैट इज रेफर्ड एज द लैमिनार फ्लो। और ये क्या है, इसका देखो मूवमेंट, एरोज देखो आप उसका, कि पर्टिकुलर कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, सो दैट इज नथिंग बट द टर्बुलेंट फ्लो एंड दिस इज द laminar flow. Okay, so today we have started the chapter flow of fluids. We have studied what is fluid mechanism, what is fluid statistics, fluid dynamics, and lastly the types of flow. Okay, so the remaining part we will study in the next lecture. Okay, thank you.